students, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. Students, today we will learn about a very interesting story जो आपने शायद बचपन में पढ़ी होगी. Okay, Ali Baba and Charlie Store की कहानी आपने सुनी है. Okay, so this story is all about Ali Baba and the 40 thieves. Let's get started. Identify and write the names of the countries whose flags are given below. So flags given है आपको यहाँ पे different countries की, आपको identify करना है कि कौन सी country के. Okay. Values learned, wisdom, persistence and presence of mind. In a town of Persia, there lived a poor woodcutter called Ali Baba. One day when he was chopping wood in the forest, he saw a troop of men approaching on horseback. Ali Baba thought that the men were robbers, so he climbed up a tree and hid himself behind the leaves. Peering from the branches, Ali Baba counted 40 men. अली बाबा एक बहुत ही पुअर वुड कटर था जो पर्शिया के एक टाउन में रहता था. ओके, पर्शिया जो आपका मॉडर्न ईरान है, इसका नाम चेंज हो गया. सो एक बार वो लकड़ी काट रहा था, उसने देखा कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप आ रहा है आदमियों का, और उसे लगा कि तो रॉबर्स हैं. तो क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है और उन्हें काउंट करता है. ये 40 मैन थे. जस्ट देन द लीडर ऑफ द गैंग डिसमाउंटेड एंड स्टेप्ड टुवर्ड्स अ लार्ज रॉक व्हील फेसिंग द वॉल. द पावरफुल मैन शाउटेड, ओपन सीसेम. Miraculously, the rock wall gave way to a secret cave. The leader stepped into the cave and the other robbers followed him. Ali Baba waited until the thieves walked out of the cave. The leader closed the door saying, "Shut, Sisem," when the thieves rode away. अच्छा, वो देखता है कि वो एक रॉक की तरफ जाते हैं और उनका जो चीफ होता है वो कुछ बोलता है कि ओपन सीसेम, और वो जो सीक्रेट केव होती है वो खुल जाती है. अली बाबा ये देख रहा होता है और वो जब वापस आते हैं थीव्स, उनका वेट करता है. उसके बाद वो लीडर बोलता है शट सीसेम, और वो डोर क्लोज हो जाते हैं. ओके, When Ali Baba was sure that they had gone away, he came down, went to the rock and shouted, "Open Sisem," and the door opened. Ali Baba stepped into the cave and found a large room glistening with gold, silver and jewels. He quickly collected all that he could and left the cave. Outside he said, "Shut Sisem," and the door closed. In haste, Ali Baba dropped a gold coin near the secret door. अच्छा, अली बाबा ने ये सब मंजर देखा और वो खुद भी जाता है और सेम चीज़ें बोलता है. वो जो सीक्रेट कोड होता है ना, ओपन सी से दरवाज़ा खुलता है, वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि इतना ज़्यादा सोना चांदी वहाँ पे पड़ा हुआ था. वो बहुत सारा कलेक्ट करता है जल्दी जल्दी, लेकिन बाय मिस्टेक गलती से वो एक कॉइन छूट जाता है उस सीक्रेट डोर के पास. ओके, A few weeks later, the leader of thieves caught sight of the coin glimmering in the sunlight. He was very angry. "You careless man, how could you drop the coin and risk revealing our hiding place?" he growled. "But master," the thief said, "none of us could have made this mistake. We know punishment for such a mistake." "Then someone else knows of our secret cave," said the leader anxiously. "We must go to the town and find out who has become rich recently and kill him." So, कुछ दिनों के बाद जब वो थीव्स आते हैं, लीडर जो थीव्स का होता है वो उस गोल्ड कॉइन उसको चमकता हुआ नजर आता है तो बहुत गुस्सा होता है. वो कहते हैं, आप तुम लोग कितने केयरलेस हो और किसी को हमारे सीक्रेट हाइडिंग प्लेस के बारे में पता चल जाएगा. तो थीव्स बोलते हैं, नहीं है, हम ऐसी मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता है पनिशमेंट हमें कितनी खतरनाक मिल सकती है. तो उसके बाद लीडर बोलता है कि शायद इसके बारे में किसी को पता चल चुका है. तो कहता है, चलो हम टाउन में जाते हैं और देखते हैं कि कौन रिसेंटली अमीर बना है और उसे फिर हम मार देंगे. ओके, मीनवाइल विद द रिचेस, अली बाबा ओपन्ड अ शॉप. ही हायर्ड अ हेल्पर नेम्ड मर्जीना. शी वाज वेरी क्लेवर एंड ब्यूटीफुल यंग वुमन. One day a stranger came to Ali Baba's shop and asked Marzina many questions about Ali Baba. These questions worried Marzina and she became very vigilant. The stranger was one of the 40 thieves in disguise. He went back and told his leader that Ali Baba, who was a poor woodcutter, has now become the owner of a new shop in town. The leader was furious. "Go there tonight and mark his house with this chalk. I'll take my men and go there later and finish him," he snarled angrily. The thief crept in the shadow and marked a cross with a chalk on the door of Ali Baba's house. But alert and clever Margina spotted him. As soon as the thief left, she marked a similar cross on all the doors of the town. When the leader and his men came later, they saw that all the doors of the town were marked, so they crept away disappointed. अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि अली बाबा इतना रिच हो गया था, उसने एक नई शॉप खोली और एक हेल्पर रखी जिसका नाम था मर्जीना. वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और साथ ही साथ बहुत क्लेवर भी थी. तो एक स्ट्रेंजर आता है अली बाबा की शॉप पे और मर्जीना से सवाल पूछता है अली बाबा के बारे में.
तो इतने सारे सवालों से मर्जीना काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि कुछ देयर इज समथिंग फिशी, व्हाई इज अ स्ट्रेंजर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अली बाबा। सो ये स्ट्रेंजर एक्चुअली उन 40 थीव्स में से एक था। फिर ये वापस अपने लीडर को बताता है कि अली बाबा तो पुअर वुड कटर था, लेकिन अब ये तो काफ़ी अमीर बन चुका है। तो फिर वो लीडर जो काफ़ी फ्यूरियस होता है, वो कहता है कि जाओ आज रात उसके घर को मार्क करके और हम आज ही इसे किल करेंगे। ओके, इसके बाद वो जो थीफ है रात के अंधेरे में आता है और उसके बाद मार्क, क्रॉस का मार्क लगा देता है डोर पे चौक से। तो मर्जीना जब ये देखती है तो उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वह सारे ही घरों में वो वैसे ही सेम मार्क लगा देती है क्रॉस का। फिर रात को जब थीव्स और उनका लीडर आता है तो अब वो पहचान ही नहीं पाते कि अली बाबा का घर कौन सा है, क्योंकि सब में क्रॉस मार्क था। तो वो वापस चले जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट डे द लीडर डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज एन ऑयल मर्चेंट. He led a train of mules that carried 40 barrels. The thieves hid inside 39 barrels and only one contained oil. In the evening, the leader arrived at Ali Baba's shop. I have brought some oil to sell at the market tomorrow, the leader said, but tonight I need a place to stay. Will you take me in? Ali Baba was as generous as usual. Of course you can stay here, he replied. There is a hay there for the mules. You can join us for the dinner. In the yard, the leader whispered to his men in the barrels, wait for my signal, and then storm the house. Margina helped Ali Baba's family feed their guests. After everyone had gone to bed, Margina was cleaning up and her lamp ran out of oil. She remembered the barrels of oil in the yard. She walked up to a barrel. A voice whispered, is it time? Margina sensed danger and she answered, not yet, but soon. She went to each barrel and from each barrel she was asked the same question. She gave the same reply to all. She discovered that only one barrel had oil. She heated up the oil and poured some in each of the barrels and killed the 39 thieves. In the middle of the night, when the leader signaled, the thieves did not come after the barrels. He then realized that he had been fooled again. He quickly fled. Now he was so furious that he made a cunning plan to take his revenge on Ali Baba. Okay, अब क्या होता है कि वो जो आपका थीफ का लीडर होता है वो एज अ ऑयल मर्चेंट बन के आता है और फिर वो अली बाबा के पास जाता है और कहता है कि मुझे कल इसको मार्केट में सेल करने जाना है, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी क्या? तो कहता है बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी अली बाबा बहुत ही जेनरस था एज यूजुअल। तो उसके बाद जो मर्जीना होती है उनकी हेल्पर, वो सबको गेस्ट को खाना खिलाने में हेल्प करती है और जब वो क्लीनिंग कर रही होती है तो उसका जो लैंप है उसका ऑयल ख़त्म हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि जो बैरल्स इनमें तो ऑयल है, तो वो जाती है ऑयल लेने के लिए। तो एक वॉइस आती है, विस्पर्ड, बिल्कुल बहुत ही धीमी सी आवाज़ में बोलना कि इज़ इट टाइम। तो समझ जाती है कि कुछ तो ज़रूर खतरा है, तो वो बोलती है नॉट येट बट सून। उसके बाद सारे बैरल्स के पास जाते हैं तो सेम क्वेश्चन सब बैरल में से पूछा जाता है, सेम आंसर वो सबको देती है। फिर उसको पता चलता है कि सिर्फ एक ही बैरल में ऑयल है। अब वो ऑयल को गर्म करती, हीट करती है और सारे बैरल जिनमें जो थीव्स थे वहाँ पे पौर करते वो सारे मर जाते हैं। इसके बाद रात को जब लीडर आता है तो सबको सिग्नल देता है, बट अब क्योंकि सारे मारे जा चुके थे तो कौन बाहर आएगा। ओके, तो उसको पता चल चुका था कि ओके मैं फिर से बुद्धू बन चुका हूँ। और उसके बाद फिर दूसरा एक प्लान बनाता है अली बाबा से रिवेंज लेने का। वो क्या होता है? अ फ्यू वीक्स लेटर द लीडर ड्रेस्ड अप अ शॉप ओनर एंड टुक अप लॉजिंग्स एट एन inn. He opened a shop across the road from Ali Baba's shop. He lived there as a Kozia Hassan for many months. One day, Ali Baba invited him for dinner. Kozia Hassan graciously accepted the invitation. He went to Ali's place that evening carrying a basket of fruits. But in his cloak, he carried a dagger. Margina noticed the dagger first and she also recognized the man as the oil merchant. She gave a dance performance. While dancing, Margina wrapped the scarf tightly around Kozia Hassan's arm and tied him to the chair. What are you doing? Ali Baba cried aghast. He is our guest. He is your enemy, she explained. He has a dagger. Ali Baba and his son seized the dagger and they led the leader to prison. I owe you my life, Margina, Ali Baba said. Please marry my son and join our family. Margina agreed and they celebrated with a splendid wedding. ओके, अब जो लीडर था चोरों का उसने एक नया प्लान बनाया अली बाबा से रिवेंज लेने का। कुछ हफ्ते के बाद वो एक शॉप ओनर के रूप में ड्रेस्ड अप होके आया और एक लॉजिंग में वो रहने लगा और एक शॉप भी उसने खोल ली।
वहाँ पे वो कोजिया हसन के नाम से रहता था, कई महीनों तक रहा। तो एक दिन अली बाबा ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया, तो ऑफ कोर्स उसने एक्सेप्ट करना ही था इनविटेशन, क्योंकि वो तो था ही इस फिराक में कि किस तरह से रिवेंज लिया जाए अली बाबा से। तो वो अली के प्लेस में जाता है, और क्योंकि उसको किसी के घर में जाना है तो वो फ्रूट्स का बास्केट लेके गया, लेकिन वो जो उसका क्लोक, जो उसका पहनावा होता है, उसमें वो डैगर यानी कटार लेके जाता है। तो मर्जीना जो है उस डैगर को नोटिस कर लेती है, और फिर वो पहचान भी जाती है कि ये तो सेम ऑयल मर्चेंट है। सो फिर रात को क्या होता है कि वो ना डांस परफॉर्मेंस देती है। तो जब डांस कर रही होती है तो मर्जीना क्या करती है, जो स्कार्फ होता है टाइटली कोजिया हसन के आर्म्स में बांध देती है और उसे चेयर से बांध देती है। तो अली बाबा तो बड़े से वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो कहते क्या कर रहे हो, ये तो हमारा गेस्ट है। तो कहती है गेस्ट नहीं, ये हमारा एनिमी है। और उसके बाद फिर वो उसे जेल भेज देते हैं। ओके, फिर जो अली बाबा थे वो तो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि 2 बार मर्जीना ने जान बचाई अली बाबा की। सो वो उसे कहते हैं कि प्लीज़ अब मेरे बेटे से शादी कर लो एंड हमारी फैमिली को ज्वाइन करो। एंड देन फाइनली मर्जीना अग्री हो जाती है, और फिर उनकी शादी होती है धूमधाम से। ओके, मॉरल लर्न्ड, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स एंड नेवर ट्रस्ट अदर्स ब्लाइंडली। प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी अ वाइटल थिंग फॉर अस। अच्छा देखिए, आपको ना हमेशा अपने सराउंडिंग्स को लेके अवेयर रहना चाहिए, और कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमेशा आपको यूज करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, अली बाबा लिव्ड इन अ टाउन ऑफ डैश। 1, इंडिया, 2, जापान, 3, Persia, or 4, England. And option 3rd, that is Persia, is the right answer. Fill in the blanks. Number 1, the leader disguised himself as an old dash. It's oil merchant. Okay. C, make sentences. Words are given over here. Okay, whispered, generous, vigilant, disappointed, wedding. Okay बच्चों, so sentences आपने इन पे बनाने हैं। अगर if you don't know the meaning of any of these words, then अपनी डिक्शनरी खोलें, वर्ड्स का जो मीनिंग है उसे फाइंड आउट करें, एंड देन मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन वर्ड। ओके, डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट डिड अली बाबा सी व्हेन ही वाज चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट। जब अली बाबा वुड को चॉप कर रहा था फॉरेस्ट में, उसने क्या देखा कि एक ट्रूप ऑफ मैन का आ रहे हैं सामने से, जो 40 लोग उसने काउंट किए। फिर एक केव होती है, उसे वो खोलते हैं, उसके अंदर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ओके, E, who said the given words? Number 1, you careless men. ये किसने कहा था? ये लीडर ने कहा था। Okay, so these words were said by the leader of thieves. Grammar workshop. Few words are given below. Pronounce them and note which letter is not spoken. Write this silent letter against each word in the given brackets. Okay. अब कुछ words आपको दिए गए हैं, आपने इनको pronounce करना है और ये देखना है कि कौन सा letter नहीं बोला गया है, उस silent letter को आपने लिखना है, ये जो bracket आपको given है। Okay. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका होता है ना SHOULD, शुड। ओके, शुड, तो इसमें L का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, सो दैट वो लेटर विच इज नॉट स्पोकन इज L। सो इस तरह से L आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। आपको यहाँ पे गिवन वर्ड्स है, ओके, वो आप देखेंगे। कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 डिफरेंट वर्ड्स। Sometimes there is a hyphen between them. Compound words वो words होते हैं जो 2 different words को मिला के बनते हैं, और कई बार इनके बीच में एक hyphen का साइन होता है, जैसे कि kind hearted, candle lit. Now join the words in the column A and the column B to form compound words. Column A और column B में आपके पास words है, इन्हें join करना है। Number 1 is door. So door को आप किससे मैच करेंगे? step से, door step. Okay. C, make adverb from the given words by adding ly with necessary changes. आपको एक words given है, उसमें आपने ly add करना है ताकि वो adverb बन जाए, और कुछ changes होते हैं तो वो भी करने। वो changes देखें, जैसे कि आपके पास है happy, so आप HAPPYLY ऐसे नहीं लिखेंगे, y की जगह you will write I. Okay, so HAPPILY, happily, right? D, punctuate the passage given below and write it neatly in the space provided. आपको इस passage को punctuate करना है, और फिर ये जो space given है यहाँ पे आप इसे लिखेंगे। ओके, देखते हैं। A jackal saw the running tiger. While running in great fear, the jackal asked. एक jackal ने देखा, saw the tiger running. Then tiger के बाद आएगा comma. Why are you running in great fear? ये आपने लिखना है double quotes में, double आपके जो punctuation marks होते हैं ना, and then comma, the jackal asked, and then आपको full stop given है। ओके, सो इसी तरह से आपने जो बाकी के सेंटेंसेस आपके रिमेनिंग है इस पैसेज में, उन्हें आप पंक्चुएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
and conversation given below are somewhat taken from the story. Divide the class into two groups and let one group from question using the words given and other group will answer the question. कुछ words आपको given है जो आपकी story से ले गए हैं, दो groups आपने बना रहे हैं, एक group जो है वो question form करेगा using given words like troops of men and जो next group है, other group है वो question को answer करेगा, right? So here comes the end of this chapter. Keep doing practice of this chapter. Preview.